This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. And in today's episode, we are learning present progressive. Before I start present progressive, आपके इर्द गिर्द कुछ चल रहा है तो मुझसे शेयर कीजिए. मैं शेयर कर देता हूँ. Miss Komal is taking class on right side. She is teaching kids of class 5 to 8. Ms. Bushra is conducting a grammar class and also a spoken class. Ms. Aisha is conducting a discussion class. Ms. Komal Sheikh is also conducting a discussion class. 4 teachers are taking class at the moment. I am teaching present progressive. It's drizzling right now in Karachi, and my wife is making pakoras, and maid is cleaning the rooms, and some birds are chirping outside. आपके इर्द गिर्द कुछ चल रहा है देखिए. अभी प्रेजेंट सिंपल मैंने पढ़ाया है. प्रेजेंट सिंपल के बाद मैं फ्यूचर सिंपल पढ़ाता हूँ. फ्यूचर सिंपल के बाद अब मैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पर आया हूँ. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बाद मैं आऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पर. ठीक है. सीक्वेंस जरा सिस्टमेटिक है, हमारी डिफरेंट स्टाइल है. ये लैंग्वेज क्लास है ना, आपके स्कूल के लेक्चर नहीं है. पहले प्रेजेंट के 4, फिर पास्ट के 4, फिर फ्यूचर के 4. तो हम आपकी जबान खुलवानी है ना, तो उसके मुताबिक चलते हैं. बताइए आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है. समथिंग इज गोइंग ऑन अराउंड यू बिकॉज वी यूज It's raining. It's raining. In which city are you? Hyderabad. Hyderabad. It's raining in Hyderabad. So what about your city? There is Kara- raining? Is Yeah, there raining? I'm in Karachi and it's raining. And it's very cloudy here. I don't feel like taking class, but I have been in my room since morning. I have been busy in my Sir, classes. I'm sitting in a room and I'm taking your class. My sister is sitting in beside room and she's watching movie. Excellent. Excellent. Beside room को अगर हम यूं कर लें, my sister is sitting next to my room. Okay, sir. My sister is sitting in another room and watching TV. Very good. और बताइए आपके घर में क्या चल रहा है. I am taking online classes. My sister is scrolling the mobiles, scrolling reels on social media. My mother is cooking food. That's very good. That's very good. और बाकी लोग share. I am laying on the bed and I am taking English class, and my son is sitting on the sofa and he is playing and he is watching a movie. How comfortable you guys are, like taking language classes, lying on a bed and learning English language. सोचा था कभी जिंदगी में आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आएगा, बेड के ऊपर लेट कर आप लैंग्वेज सीख रहे होंगे. नहीं सर. You never thought about it. You never thought about it. लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको ऐसे कैसे दे दिया. आप लेटे बैठे जो करें, you can learn language. Yes, next. Raise your hand when you are ready. I am sitting on the sofa and I am taking online class in SKS classes, and my mother is cutting some vegetables. That's very good. What vegetables is she cutting? Cauliflower and I think you know, Okay. Yes, Arfa. cauliflower and capsicums. Okay, sir. I am lying on the sofa and I am taking SKH online class, and my baby is next to my room and she's taking care of her children. That's very good. Yes, Uneza. So I'm sitting on bed and taking class on mobile, also doing and also solve present tense workbook, present progressive and workbook. That's very good. That's very good. Yes, Bandat. Sir, I'm sitting on the bed and
I am taking online class. My daughter is sleeping and here outside busy. That's very good. Fiza, I am making notes. My sister is playing with ball, and my brother is feeding the parrot, and my helper is dusting the furniture, and good, very good. my mother is drinking the water, and my little sister folding the clothes. That's very That's good. it. Yes, Maria. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. I'm sitting on the bed and I am taking the class, and my husband is lying on bed sheet, and my little kid is getting angry with me because I cannot give him my phone because I want to focus on my class. That's very good. That's very good. Yes, अच्छा अब बात करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पे। थोड़ा सा आप लोग वार्म अप हो चुके हैं कि हाँ भाई किस तरह से हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। यस मोनिका। Yes, so यस मोनिका। in the sofa and I'm taking an English language classes. My brother is sitting with me. Your brother is He is sitting there. playing a video game. I want to play a video game with brother, but I can't. That's very good. Yes, Shamsa. Assalamualaikum, sir. Walaikum I'm just laying in bed. I'm taking my class, and my children are playing, and my nieces are doing house chores. One of my elder niece is doing the dishes, and second one is cutting the cloth. That's very good. That's very good. Okay, Kuratulan. Aj. Yes, sir. Sir, right now I am taking grammar class, and kids are playing outside the room, and maid is doing some house chores. बिल्कुल इसी तरह से आपकी स्पोकन टीचर आपसे पूछेगी कि आपसे वो कहेगी कि भाई you are standing at the bus stop. Describe the situation. You are standing in the hospital. Describe the situation. You are standing in a shopping center. Describe the situation. So you will be describing the situation with the help of present progressive. और आप किस तरह से बात करेंगे? Well, right now I'm standing at the bus stop. I can see. I can see का मतलब होता है मैं देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ इसका मतलब मैं देख रही हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं देख रही हूँ। सी के साथ वर्ब आईएनजी नहीं लगा सकते क्योंकि वर्ब आईएनजी हर वर्ब के साथ नहीं लगता। आप लोग ये बात भी पढ़ेंगे कि हर वर्ब के साथ वर्ब आईएनजी नहीं लगता। कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम वर्ब आईएनजी नहीं लगाते? वो उसकी पूरी बाकायदा आपसे मैं शेयर करूंगा, ठीक है ना। लेकिन हर वर्ब के साथ हम वर्ब आईएनजी नहीं लगाते, ये बात ज़हन में रखिएगा। जैसे आई एम अंडरस्टैंडिंग, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। आगे चलिए। Why do we use present progressive? We use present progressive to say that something is going on at the time of speaking, something is going on around the time. जैसे I'm taking class at the moment. ये कोई काम आपकी आंखों के सामने चल रहा है। वो देखो सिगरेट पी रही है। Look, she is smoking. तुम क्या कर रही हो? What are you doing right now? What are you doing right now? What are you doing now? ये चार इसके फैमिली वर्ड्स है, याद कर ले। At the moment, look, right now और now. अच्छा, जरूरी नहीं है बेटा, मैं भी बात करता हूँ आप लोगों से और आपका सवाल लेता हूँ। जरूरी नहीं है कि आपकी आंखों के सामने ही कोई काम चल रहा हो सकता है वक्त के साथ साथ चल रहा हो। जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। आपके एक दोस्त आए हुए थे, आप बाहर लॉन पे बैठी हुई है, बारिश हो रही है, चाय हाथ के हाथ में। क्या कर रही है आजकल आप? मैं आजकल लैंग्वेज सीख रही हूँ।
अच्छा, कहाँ जा रही है? जाकर नहीं रहे, घर में ही सीख रही हूँ। कोई ट्यूटर आ रहे? अरे नहीं भाई, ऑनलाइन पढ़ रही हूँ। ऑनलाइन हो जाती है पढ़ाई? हाँ भाई, अब तो पढ़ रहे हैं। What are you doing nowadays? क्या कर रही है आजकल आप? I'm learning language these days. I am learning language these days. I'm learning language these days. ठीक है बेटा, आ गई बात समझ? सवाल किसी का? फारीन, फहारीन, सर राइट नाउ, नाउ दीज डेज, इन सबको क्या कहेंगे एट द मोमेंट लोग? ये एडवर्ब्स है बेटा। Right ठीक now, है। now, at the moment, look, they all are your adverbs. These days, nowadays. और ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के फैमिली वर्ड्स है। याद करें, आपने फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स पढ़े थे प्रेजेंट सिंपल में? समटाइम्स, यूजुअली, नॉर्मली, वो प्रेजेंट यस सर। सिंपल के फैमिली sir. वर्ड्स थे। ये प्रेजेंट वेल डन। प्रोग्रेसिव के फैमिली वर्ड्स, और ये आपकी जबान पर आने चाहिए। जब आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का जुमला बोले तो साथ में ये भी इस्तेमाल करें, जुमले में खूबसूरती आती है। आई एम टेकिंग क्लास एट द मोमेंट। अभी जैसे आपकी स्पोकन क्लास का मटेरियल अपडेट हो रहा है, आप लोगों के पास बहुत सारी एक्टिविटीज आ रही है। जैसे टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड दे आर डिस्कसिंग देयर डेली लाइफ। So what are you doing these days? Well, I am learning English these days. And what else do you do? इसके अलावा आप क्या करते हैं? I have so many works to do. Two friends are talking. आपको पहले टीचर बता देगी two friends are talking. तो आप प्लान कर लें कि अगर आपको एक फ्रेंड मिल जाए ऑनलाइन और आपसे बात करनी है उसको 2 मिनट की, तो आप किस तरह से करोगे? Two friends are talking on the phone. Hello, hello. Hi, Aisha. I'm fine. What about you, Sabine? I'm good. So what are you doing nowadays? Two friends are talking. और आपको टेंस बता दिया कि आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बातें कर। अच्छा, क्या तुम आजकल क्लासेस ले रही हो? पर कोई भी सवाल निकालना है। क्या तुम क्लासेस ले रही हो आजकल? आर यू टेकिंग क्लासेस दीज डेज? नहीं यार, आजकल मैं बिल्कुल भी क्लास नहीं ले रही, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। I'm not taking classes at the moment because my internet is not working properly. तो फिर तुम क्या कर रही हो आजकल? What are you doing nowadays? यार आजकल तो मैं अपनी के साथ जो है ना वो घर किचन साफ करवा रही हूँ। आई एम क्लीनिंग द किचन। मैं तुम्हारा किचन है मतलब क्या एक दिन में हो जाता है किचन साफ? यार हमारा तुम्हें किचन देखा नहीं है कितना बड़ा है? So it takes a lot of time to clean that. So I am just cleaning my whole house these days because my some guests are coming next month. ओके, अभी क्या कर रही हो? मैं इस वक्त हम टीवी का ड्रामा देख रही हूँ। बातें बहुत है आप लोगों के पास, सोचने वाले। बस समझ ले, फोन आ रहा है आपके हाथ में। एक एक्टिविटी है कि आपके हाथ में फोन है, बातें करें। लेट्स टॉक। कर लेंगे बातें, टेंस बता दिया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बातें करनी। सर मेरा क्वेश्चन है, आपने अभी बताया कि हमने जब एडवर्ब इसके फैमिली वर्ड्स यूज करेंगे एडवर्ब्स के, जैसे राइट नाउ, नाउ, दीज डेज, तो अभी आपने एक वर्ड यूज किया है कि सम गेस्ट्स आर कमिंग इन नेक्स्ट वीक। तो ये तो नेक्स्ट वीक क्या ये एडवर्ब है उसका क्या? इसमें क्या करेक्ट पोजीशन है इसकी जो प्रोग्रेसिव की आपने अभी बताई है? आपने तो अभी ये बताया ही नहीं कि नेक्स्ट वीक भी यूज कर सकते हैं इस सेंटेंसेस में। पिक्चर अभी बाकी है मेरी बहन, स्टे ट्यून्ड। ठीक है ना? पिक्चर अभी बाकी है, आज की एपिसोड हमारी खत्म नहीं हुई। आपके सवाल के जवाब मिल जाएगा आज। चले जी, आगे चलते हैं। सेकेंड यूज, we can also use the present progressive to talk about changing and developing situation. हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? जब हम बात करते हैं चेंजिंग एंड डेवलपिंग सिचुएशंस। देखिए, हालात में तब्दीली आ रही है आपके, माशाल्लाह। लैंग्वेज क्लासेस आप लोग ले रहे हैं, आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश। आप इसमें ये भी लगा सकते हैं ग्रेजुअली, आप इसमें ये भी लगा सकते हैं डे बाय डे। डे बाय डे का जो वर्ड है वो इस सिचुएशन में इस्तेमाल ज्यादा होता है। टाइम बाय टाइम, ग्रेजुअली, डे बाय डे, ये 3 वर्ड्स हैं जो मैंने इस सिचुएशन में ज्यादातर देखे। जैसे आई एम गेटिंग बेटर इन इंग्लिश डे बाय डे, आई एम गेटिंग बोर डे बाय डे, आई एम गेटिंग बोर इन द पार्टी राइट नाउ। ये भी लगा सकते हैं आप, राइट नाउ भी लगा सकते हैं क्योंकि है तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ही ना। योर माय हेयर इज गेटिंग हेल्दी। तब्दीली आ रही है भाई, तब्दीली आ रही है। आजकल आप रोजाना रात को
सोने से पहले फायजा ब्यूटी क्रीम लगा रही है और आपके अंदर निखार आता जा रहा है। यू आर गेटिंग प्रिटी डे बाय डे, योर कॉम्प्लेक्शन इज गेटिंग फेयर डे बाय डे। क्या कर रही हो हमें भी बता दो। ऐसे याद करें अपने कॉलेज के दिन, आप धूप में जा रही थी कॉलेज, तो आपकी पुप्पी ने फिर कहा था तुम्हारा कलर कितना गिरता जा रहा है। याद आया? पुप्पी ने या चच्ची ने कमेंट किया होगा तुम्हारा रंग कितना गिरता जा रहा है। योर कॉम्प्लेक्शन इज गेटिंग डार्कर डे बाय डे। क्या कर रही हो आजकल? तो पुप्पी कॉलेज जाती हो ना सुबह, तो भाई अपना भी ख्याल रखो, आगे शादी भी है तुम्हारी, लड़के वाले आएंगे, क्या मुंह दिखाओगे? अरे पप्पी जब आएंगे तो देखा जाएगा, मेकअप सब तब्दीलियां ले आता है। बट योर टी इज गेटिंग कोल्ड। सुने आपकी चाय ठंडी हो रही है। योर टी इज गेटिंग कोल्ड। आप चाय लाकर रखते हैं तो क्या वो गर्म रहती है? आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीली आती है टेम्परेचर में, गर्म से ठंडी होना शुरू होती है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो आप कहते हैं आपकी चाय ठंडी हो रही है। योर टी इज गेटिंग कोल्ड। आई एम गेटिंग हंग्री। मुझे भूख लग रही है भाई। आई एम गेटिंग हंग्री। आई एम गेटिंग hungry. She is getting nervous. She is getting nervous. वो परेशान हो रही है। It's getting hot in Karachi. I'm getting tired. मैं थक रही हूँ। है कोई तब्दीली आ रही है आपके हालात में? तो आप कह सकते हैं सर I'm getting है भाई किसी के अंदर तब्दीली? सर I am getting fatty day by day. I'm getting fatty. I'm getting fatty day by day. Next. Yes, sir. Same here. I'm getting fat day by day. I'm getting fat day by day. I'm getting next. I am getting I am getting better day by day in communication. I'm getting better. I'm getting better के बाद at लगेगा, याद रखिएगा। I'm getting better at communication day by day. Good, better, best होता है ना, तो good के बाद at लगता है, तो better के बाद भी at लगेगा, best के बाद भी at ही लगेगा। I'm good at, I'm best at, I'm better at. I'm getting, she is getting Lazy day by circumstances of Pakistan are getting worse day by day. सही कह रहा हूँ? Circumstances of Pakistan are getting worse day by day. पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। Yeah, the inflation rate getting higher day by day. Inflation rate is getting higher day by day. You are absolutely right. People Sir, I have are. a question. I Yes. am getting better at skills, at my skills. I'm getting better at my skills. Yes. Next. Sir, I Next. have a question. Yes, please. Sir, इसमें है I'm getting bored. तो bored तो third form है ना, तो हम bored I'm क्यों getting कहेंगे bored? अक्सर जो थर्ड फॉर्म्स होती है वो आपकी एडजेक्टिव्स बन जाती है। जो थर्ड फॉर्म्स होती है अक्सर वो आपकी एडजेक्टिव्स बन जाती है। जैसे I'm getting tired. I'm getting injured. He's getting worried. ठीक है ना? तो आप थर्ड फॉर्म लगा रही है, तो ये थर्ड फॉर्म क्या है? ये थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए अब शैला का एक सवाल का जवाब आ रहा है। आज से पहले हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का जो इस्तेमाल किया है वो सिर्फ प्रेजेंट में किया है। आज हमें ये बात पता चलने जा रही है कि हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल फ्यूचर में भी कर सकते हैं। जैसे अगले हफ्ते मैं शादी कर रहा हूँ। सच्ची सर? हाँ भाई। आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। लड़की राजी हो गई है, लड़की के घर वाले राजी हो गए। पैसा देखते हैं लोग भाई आजकल, ये थोड़ी देखते हैं भाई पहले से शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, पहली बेगम भी खूबसूरत है, दूसरी उससे ज्यादा खूबसूरत, कोई टेंशन नहीं है। आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। रिश्तेदारों को सबको कार्ड बांट दिए हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल।
जब सारी तैयारियां मुकम्मल है, आप सिर्फ आने वाले वक्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते शादी कर रही हूँ। लेकिन यहाँ मैं पूछूं, हाँ बेटा सोनिया आप शादी कब करेंगी? कर लूंगी सर अगले साल, अभी तो कुछ प्लान्स नहीं है, कोई रिश्ता फाइनल नहीं हुआ है, समझ नहीं आ रहा सर किससे करूं। उससे करूं जिसका अपना बिजनेस है, उससे करूं जो पढ़ाता है, उससे करूं जो कुछ नहीं करता मुझे प्यार करता है, समझ नहीं आ रहा सर, पजल्ड। आई विल गेट, लेकिन सर अगले साल में शादी कर लूंगी, आई विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। नहीं समझ आए तो बेटा मुझे बताना, मैं आपको दूसरा रास्ता दिखा दूंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। आई विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर, तीनों का मुकाबला करा दे आप आपस में, जो जीत जाए उससे आप कर लीजिएगा। ये प्लान है। जब आप प्लानिंग करते हैं, अभी आपकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, घर वाले माने ना माने, तारीख अभी कोई तारीख पक्की नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो आप फ्यूचर का इस्तेमाल करें। वी आर गोइंग टू पिकनिक ऑन सैटरडे, वी विल गो टू पिकनिक ऑन सैटरडे, चलो पिकनिक का प्लान करते हैं। कहाँ चले? कहाँ चले? आपने कहा सर सी साइड चलते हैं। कैसे चले? सर पोस्टर पे चलेंगे। क्या खाओगे? बिरयानी खाओगे। रोकोगे कहाँ? सर हट करवा। ओके डन हो गया। अब आप घर जाकर सेंटेंस क्या बनाएंगे? वी आर गोइंग टू पिकनिक ऑन सैटरडे या वी विल गो टू पिकनिक ऑन सैटरडे? बताइए। सेंटेंस क्या बनेगा? घर जाकर आप We are going to picnic on Saturday. We are going to picnic on Saturday. पैसे दे दिया आपने मुझे? Yes, sir. कब बुकिंग करा? हेड बुक हो गई? पोस्टर की Yes, बुकिंग sir. करा दी? अरे अभी कहा अभी तो मुंह पे फायर मार रहे हैं, अभी तो सिर्फ बातें हुई है। अभी आप घर जाकर पहले परमिशन लेंगी, परमिशन लेटर पे सिग्नेचर करवाएंगी, फिर हमारे पास सारे परमिशन लेटर आएंगे, फिर हम जा करके हट बुक कराएंगे, फिर हम पोस्टर बुक कराएंगे, फिर खाने का ऑर्डर जाएगा, फिर हम देंगे भाई जा रहे हैं हम हफ्ते को पिकनिक पर। वी आर गोइंग टू पिकनिक ऑन सैटरडे। आ गई बात समझ? वी आर गोइंग टू पिकनिक ऑन सैटरडे। वी आर गोइंग, जब आप कंफर्मेशन हो जाए, हर सारे काम के इंतजाम हो जाए, तो जाऊंगी मैं एक दिन लंदन जाऊंगी। अभी तुम्हारे पास हैदराबाद जाने के पैसे नहीं है, तुम लंदन जाने की बातें कर रही हो। सर लेकिन आप देख लीजिएगा, मैं एक दिन लंदन जाऊंगी। तुम लंदन बाजार जरूर जाओगी, लेकिन लंदन का मुझे कंफर्म नहीं है भाई। सर आप ऐसी बातें कर रहे हैं, देखिएगा सर आप लंदन जाऊंगी, ये लंदन जाऊंगी कि आप ये आपका क्या है? प्लान है। कहते हैं ना हम इंसान प्लानिंग करते हैं बड़ी बड़ी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, आई विल गो टू लंदन वन डे। लेकिन हालात बदल गए, आपको लंदन से रिश्ता आ गया, वीजा लग गया, टिकट लग गया, फोन आया आपका, सर जी मैं जा रही हूँ लंदन, आई एम गोइंग टू लंदन ऑन संडे। I'm going. सर जी मैं जा रही हूँ, आपने कहा था ना तुम जा ही नहीं सकती। सर जी मैं जा रही हूँ, अब देख लें। खैरियत तो है लंदन वाले? मतलब क्या लोगों, लंदन बंद होने वाला है, लंदन के बुरे दिन आने वाले। आई एम गोइंग टू लंदन ऑन संडे, इसका मतलब आपका टिकट हो गया है, आपका जो है वो वीजा लग चुका है, सारे इंतजाम हो गए, पैकिंग हो गई है, रिश्तेदारों को बता दिया है। सही है। जब इंतजामात हो जाए तो फिर आप इस्तेमाल कर लें। अब ये जो एक सवाल था अभी शैला ने कहा था, सर आपने माय सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर कमिंग नेक्स्ट वीक, टिकट कंफर्म हो गया। जब कंफर्मेशन है फ्यूचर की कि वो लोग आ रहे हैं, सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर कमिंग नेक्स्ट वीक, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ उनका इरादा है, उन्होंने कंफर्म नहीं किया, तो फिर वो आप क्या कहेंगे? सम ऑफ माय फ्रेंड्स विल कम नेक्स्ट वीक। क्लियर? अभी आप लोग आजकल तो हमारा लैंग्वेज क्लास में दाखिला ले चुके हैं आप लोग, लेकिन फर्ज करें आज से 3 महीने पहले आपके जहन में ये बात होगी, आई विल ज्वाइन लैंग्वेज क्लासेस, आई विल Sir, I ज्वाइन। have a question, sir. जी बोले। Sir, जैसे I am going to London on Sunday, I will go to London one day. It's mean कि वो arrangements done हो चुकी हैं, Sunday का plan हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो हमने I will use किया, इसका मतलब ये एक दिन जाऊंगा, मतलब आई ये विल अभी एग्जैक्ट कंफर्म नहीं plan नहीं कंफर्म है। नहीं है, आपके इरादे हैं। लेकिन अब आप और गहराई में भी मैं आपको लेके जा सकता हूँ। अगर मैंने ये बोल दिया आई विल गो टू लंदन ऑन संडे, तो क्या ये गलत हो गया? जनरली मैंने अभी आपको देखे एक डिफरेंस समझा दिया है। आई एम गोइंग टू लंदन ऑन संडे, अरेंजमेंट्स हो गए।
आई विल गो टू लंदन वन डे प्लान, लेकिन ये तो अगर गलत तो नहीं होगा। आई विल गो टू लंदन अगर वन डे, मैंने ये ये ठीक कह है ना? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, गहराई में जा रहा हूँ और गहराई में जा रहा हूँ, एक और डुबकी मार रहा हूँ अंदर, एक नई चीज सामने लेकर आऊंगा। आई विल गेट मैरिड नेक्स्ट वीक, लड़की राजी, कार्ड छप गए, खाने के ऑर्डर डाले गए, सब कुछ हो गया, लेकिन मैंने विल लगाया। अब दो दोस्त मिले, मैं समझा रहा हूँ सिचुएशन, समझ लो। अबे तेरे को पता चला कुछ क्या, सोनिया विल गेट मैरिड नेक्स्ट वीक, ना कर। अबे वो तो रशीदा आंटी निकल रही थी साहब बाहर, उनसे मैंने पूछा खैरियत, इतनी तैयार होकर निकल लिया? तो कह लिया आज वो उसका, उसके ससुराल वाले आए हुए थे भाई, उसका जोड़ा देने। क्यों खैरियत? उन्होंने कहा हफ्ते को शादी है भाई उसकी। अब कौन सा हॉल हुआ है, क्या अरेंजमेंट्स है, खाने का ऑर्डर, कार्ड, कुछ नहीं पता। आपको एक खबर मिल गई है, वो खबर क्या थी? सोनिया की शादी हफ्ते को हो रही है, बट यू डोंट नो द अरेंजमेंट्स, बट यू डोंट नो द अरेंजमेंट्स। तो जब आपको अरेंजमेंट्स के बारे में पता नहीं होता तो भी आप फ्यूचर सिंपल लगाते हैं। सारा विल गो टू लंदन ऑन संडे, जाएगी तो टिकट भी हो गया होगा, लेकिन कौन सी फ्लाइट है, कितने बजे जाएगी, पैकिंग हुई कि नहीं हुई, यू डोंट नो। गॉट इट? गहराई है ये। when you have no idea about the arrangements but things are happening, you will use future simple, it will be correct, but you have no idea about the arrangements. एक और डुबकी मारूं और गहराई में जाऊं? एक और। यस सर। इमरान खान विल विजिट चाइना ऑन संडे। अब इमरान खान विल विजिट चाइना ऑन संडे, जब आप किसी बात को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, आपके लिए वो चीज बहुत एक सीक्रेट प्लान होता है, बस आपने ये बता दिया इमरान खान जाएंगे, किस फ्लाइट से जाएंगे, कब जाएंगे, आप बताना नहीं चाहते फॉर सिक्योरिटी रीजंस। you have not mentioned the arrangements, so you will use future simple। लेकिन उसमें भी इंतजाम सारे हो गए, बट सिक्योरिटी को सामने रखते हुए कोई इंतजाम सामने आपके नहीं लेकर आए गए, तो आप फ्यूचर सिंपल ही कह रहे होंगे इमरान खान विल विजिट चाइना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं जाएंगे, ये चांस पर है, टिकट कंफर्म नहीं है। टिकट कंफर्म है, वो जाएंगे, इंतजाम सारे हो गए, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसको लीक नहीं किया गया है। सही, ये ग्रामर है। जब ग्रामर की आप गहराई में जाते हैं ना, तो हर सेंटेंस को लिखते वक्त, बोलते वक्त हमें बहुत सारी चीजों को फोकस करना पड़ता है। मैंने आपको ऊपर से कुछ बातें बताई, लेकिन हर चीज में और भी गहराई होती। तो कुछ शैला ने पूछा, तो मैंने वो दो डुबकियां मार के आपको दो बातें और बता दी। आगे चलते हैं। We can also, अभी भी फ्यूचर की बात चल रही है, we can also use the present progressive to talk about temporary situation। और अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टू फ्यूचर। प्रेजेंट टू फ्यूचर से मुराद है 2 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 2 महीने के लिए, 2 रातों के लिए, 2 सुबहों के लिए, 2 दोपहर के लिए, होते ना, फॉर 2 नाइट्स, फॉर 2 आफ्टरनून्स, फॉर 2 मॉर्निंग्स, for 2 days, for a week, for a month, for 6 months। यानी कि आप बात कर रहे हैं प्रेजेंट टू फ्यूचर। जब आप प्रेजेंट टू फ्यूचर बात करते हैं, आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं, यानी वक्ती तौर पर आप कुछ कर रहे हैं। मैं 1 हफ्ते के लिए लाहौर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू लाहौर फॉर अ वीक। 1 हफ्ते के लिए आ रही है वो। शी इज कमिंग फॉर अ मंथ। आन दो देख लेंगे। शी इज कमिंग फॉर अ मंथ। वी आर स्टेइंग हियर फॉर 2 days। हम यहाँ पर 2 दिन के लिए ठहरे हैं। वी प्रेजेंट टू फ्यूचर, 2 दिन के लिए। अब जरा 2 सेंटेंसेस को बहुत तवज्जो के साथ फोकस कीजिएगा। हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल 2 है, कितने अरसे के लिए और कितने अरसे से। अगर आपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लगाया हाउ लॉन्ग के साथ, तो इसका मतलब होता है कितने अरसे के लिए। हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर, कितने अरसे के लिए वो यहाँ ठहर रही है, कितने अरसे के लिए, प्रेजेंट टू फ्यूचर। और अगर यही जुमला थोड़ा सा तब्दील हो जाए और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के साथ आ जाए, जो कल मैं पढ़ाऊंगा,
How long has she been staying here? वो यहाँ कितने अरसे से ठहरी हुई है? How long has she been staying here? वो यहाँ कितने अरसे से, कितने अरसे के लिए? How long are you teaching online? जवाब क्या मतलब बताइएगा? How long are you teaching online? आप कब से कितना अरसे के से क्लास ले रही हैं? सोच पढ़ ले, रही हैं, पढ़ा रही हैं। सोच ले, थोड़ा सोच ले, अपने नन्हे से दिमाग पे जोर डालिए। How long are you? Bluetooth device is needed to pair. How long are you teaching online? कितने अर्से से आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? तो फिर नीचे वाले जुमले का मतलब क्या होगा? How long have you been teaching online? मैंने कहा ना, जब आप हाउ लॉन्ग के साथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लगाएंगे तो इसका मतलब है कितने अरसे के लिए। आप कितने अरसे के लिए आप ऑनलाइन कब पढ़ा से रहे हैं? ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? वो नीचे वाला है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग ऑनलाइन। आप कब से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? आप कितने अरसे से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? आप कितने अरसे के लिए पढ़ाएंगे? पढ़ा कितने रहे अरसे हैं? के लिए कितने अरसे जी, कितने अरसे के लिए सर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? जब कोविड आया था तो लोग ये सवाल करते थे, आप कितने अरसे के लिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? पैसे लेके भाग तो नहीं जाएंगे आप? हाँ, हम भाग जाएंगे, हमारे जायदादें बन जाएंगी हमारे 6,000 रुपए लेकर। आई एम टीचिंग ऑनलाइन फॉर अ ईयर, क्या मतलब? आई एम टीचिंग ऑनलाइन फॉर अ ईयर। आई एम टीचिंग ऑनलाइन, मैं 1 साल के लिए पढ़ा रही हूँ। मैं 1 साल के लिए ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। उस वक्त यही इरादा था कि 1 साल के लिए पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हालात के मुताबिक चल फिर अपने आप वापस चले जाएंगे अकेडमी। लेकिन हमें क्या पता था कि आप लोग हमें रोक लेंगे इस तरह से। आई हैव बीन टीचिंग ऑनलाइन सिंस रमजान, क्या मतलब? मैं रमजान से पढ़ा रहा हूँ। रमजान से पढ़ा रहा हूँ। मैं रमजान से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। डिफरेंस याद रहेगा बेटा? ठीक है, यस सर। चलिए, एक स्ट्रक्चर आपको याद है, आप लोगों ने हैव टू पढ़ा था, याद करें। बी हैविंग यस टू, सर। वो जो Yes, बी, sir. वो बी Yes, हैविंग sir. टू, अब हैव टू की बहन आ गई है, बी हैविंग टू। कोई जिम्मेदारी जो आजकल आपको निभानी पड़ रही है कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आजकल निभानी पड़ रही हो, किसी भाई की, किसी बहन की? सोचे, किसी आज नौकर। की क्लास ये I am having to do dishwashing these days because my maid is absent. I'm having to bear so many things these days. आजकल मुझे बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ रही है। Yes, please. I'm having to learning English in these days. आजकल मुझे लैंग्वेज सीखनी पड़ रही है। टेम्पररी ऑब्लिगेशन है, एक दफा आ जाएगी, उसके बाद आप हमें क्या याद रखेंगे? भूल जाएंगे, जैसे 19 साल में बच्चे हमें भूल चुके। I am having to do house chores. I am having to do home chores. Home मुझे chores. I am having class for 2 hours. I'm having to take classes for 2 hours. I'm having to take classes for 2 hours. मुझे 2 घंटे के लिए आजकल क्लास लेनी पड़ रही है। वैसे तो मैं 6 घंटे के लिए लेती हूँ, लेकिन आजकल 2 घंटे के लिए मुझे क्लास लेनी पड़ रही है। Yes, next. I'm having to reading novel. Very good. I'm having to read novels. Having to के बाद first form. I'm having to read novels. What are you having to do nowadays? Yes. I'm having to. I am having to work on tenses. I'm having These to days. work. I'm having to work on my tenses these days. That's very good. I am getting admission. I'm having to. language I'm having to. for I'm 3 having months. to take admission. I'm having to take admission. I'm having to take admission. I'm having to. जी बेटा. So I'm having to teach tuition to my children these days. I'm having to give tuitions to my kids these days because I'm saving money. Everybody is having to save money, but everybody is getting poor in Pakistan these days. हर कोई गरीब होता जा रहा है। चलिए,
आगे चलते हैं, एक और स्ट्रक्चर इज एम आर गोइंग टू। देखो गोइंग का यहाँ पर मतलब ये नहीं है जाने वाला, जो तुम लोग जाते हो। बेटा कहाँ जा रही हो? मम्मा मैं सलीम के यहाँ जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू अंकल सलीम, आई एम गोइंग टू अंकल सलीम, या फिजिकली जा रही। ये गोइंग टू का मतलब यहाँ वो नहीं। ये गोइंग टू है आपका इरादा। इरादे तो बहुत जिंदगी में किए हैं आपने, ठीक है ना। एक इरादा किसी दौर में ये भी था, आई विल ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। अगर तो इरादा है सिर्फ, फिर इरादा, इंटेंशन और प्लान जो है वो सेम चीज होती है। आई विल गो अब्रॉड, आई विल ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, आई विल स्टार्ट अ जॉब, आई विल स्टार्ट माई ओन ऑनलाइन अकेडमी। उसके बाद दिल से आपकी दुआएं निकला करेंगी, आप बातें ऐसी दिल से निकलेंगी जब आप ऑनलाइन काम करेंगे। फिर आप मुझसे पूछेंगे सर आप कैसे बर्दाश्त करते हैं पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानियों में। बस अब आदी हो गया हूं मैं, आदी हो गया। अपने आपको बहुत समझाया मैंने कि नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट हैपेंस। आई विल ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, ये इरादा है आपका। आप इंटरव्यू के लिए गई, वहां तबीयत से आपको ऐसा धोया उन्होंने कि आपने एमए इंग्लिश का रखा है और आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती। घर आके 2-4 गिलास तोड़े आपने। मम्मा मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? मैं बस लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन करने वाली हूँ, मैं लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन करने वाली हूँ। पक्का इरादा आने वाले वक्त के लिए। इरादा हमेशा, इंटेंशन हमेशा फ्यूचर की ही होती है। इरादा जो होती है, इरादा जो होता है वो आने वाले कल का ही करते हैं हम लोग। आई एम गोइंग टू ज्वाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस नेक्स्ट वीक, इरादा है। तो बेटा कहाँ जाओगी, कितने पैसे लगेंगे बेटा, अपने अब्बा को बता दो। अरे मम्मा बता ही दूंगी, पहले देख तो लूं कोई अच्छी एकेडमी मिल जाए मुझे, जाऊंगी कल देख कर आऊंगी। आज मोबाइल उठाया, मोबाइल में इनको ऐड दिखा, स्पोकन इंग्लिश, इन्होंने क्लिक किया, इंफॉर्मेशन ली। अच्छा बस 6,000 रुपए 3 महीने के लिए, 9 घंटे रोजाना, वो भी 60 टीचर्स के साथ। बस अकाउंट नंबर दे दे आप अपना, ये पैसे जमा कराए। मम्मा को आवाज लगाई, मम्मा मैं लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ थर्सडे से। बेटा पापा को तो पहले बता दो। अरे पापा को क्या बताना, मैंने कौन सा कहीं जाना है, क्या मतलब बेटा? अरे मम्मा ऑनलाइन करूंगी। बेटा देखो कोई पैसे लेके भाग ना जाए, फ्रॉड ना हो, इतने स्कैम्स होते हैं ऑनलाइन। मम्मा बात तो अच्छे से कर रहे हो, अब देखें बाद में मेरी किस्मत लेके भाग गए तो कीड़े पड़ेंगे उनमें। नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते। अरे मम्मा देखें, देखती है थर्सडे से देखते हैं। आई एम, अब आप क्या नारे लगा रहे हैं, फेसबुक पे लगा दिया, आई एम ज्वाइनिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस फ्रॉम थर्सडे। होता है ना कुछ लोगों की आदत होती है हर बात फेसबुक पे डालने की। आई एम ज्वाइनिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस फ्रॉम थर्सडे। शायद मैंने 3 साल, मुझे याद पड़ रहा है, आई थिंक मैंने अपना स्टेटस, फेसबुक का स्टेटस 1 साल से अपडेट नहीं किया। इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर आई एम नॉट updating my status on Facebook. It's no use updating yourself on FB or Insta. Try to hide yourself. अपने आप को छुपा के रखें लोगों की गंदी नजरों से। From the poor नहीं, bad eyes of people, जो होते हैं ना जिन आंखों से नजर लगती है, उनको हम कहते हैं अंग्रेजी में bad eyes, बुरी नजर से। Save yourself from the bad eyes of people. आप लोग इंस्टा और फेसबुक पे अपनी सबसे खूबसूरत चीजें डाल देते हैं, सबसे अच्छी डीपी आपने लगा दी, लोग हसद करते हैं। और आपको पता है हसद कितनी बुरी चीज है, तो लोगों को मौका ही ना दे कि वो आपसे हसद करें। आई बात समझ? सो नेवर अपलोड योर पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल अचीवमेंट्स ऑन एवरी। People will get jealous of you, and if they get jealous of you, your life will ruin. आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। I will sell my car. बेच दूंगा मैं ये गाड़ी। नई नई शादी, नई नई बीवी, गाड़ी में जा रहे थे, रास्ते में बंद हो गई, वो बेच दूंगा मैं गाड़ी। I will sell my car. इरादा। हालात बदलते नहीं, गाड़ी बदली नहीं, हालात बदलते रहे, बच्चे बड़े हो गए। फिर बेगम के भाई की शादी में जा रहे थे, गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे चढ़ी, उतर ना सकी, फिर बंद। अब क्या कहेंगे? अब मैंने उस वक्त मैंने एक पक्का इरादा किया, आई एम गोइंग टू सेल दिस कार, आई एम गोइंग टू सेल दिस कार। ये मैंने क्या किया है भाई? ये मैंने पक्का इरादा किया। लेकिन इस गाड़ी को खरीदेगा कौन?
इस गाड़ी को खरीदेगा कौन? हु विल बाय दिस कार? लेकिन इरादा कर लिया, फेसबुक OLX पे लगा दी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा आग लगा दे, समंदर में बहा दे। बहरहाल किसी ने कहा मैं ले लूंगा भाई, ₹1,00,000 की, उन्हें स्क्रैप के तौर पे चाहिए। तो आई एम सेलिंग दिस कार, आई एम सेलिंग दिस कार नेक्स्ट वीक, आई एम सेलिंग दिस कार नेक्स्ट वीक। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपने फैसला कर लिया है, आपने इस बात का फैसला कर लिया है कि आप कोई काम करने जा रहे हैं। आई एम सेलिंग, ये जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मैंने आपको पढ़ाया, आई एम गोइंग टू सेल माई कार, ये इरादा है। तो जब कोई पक्का इरादा करो ना, तो आई एम गोइंग टू डू इट, इस जुमले को याद रखो, आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोना डू दिस। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? तुम क्या करने वाले हो? इरादे क्या है तुम्हारे? आई एम गोना किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सच्ची, आई विल किल यू, इरादा, आई एम गोइंग टू किल यू, पक्का इरादा। ठीक है ना? आ गई बात समझ? आखिरी बात, यही स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन में भी इस्तेमाल होता है। वैसे तो देखो प्रिडिक्शन के लिए फ्यूचर, देखो फ्यूचर सिंबल पढ़ाने की पहली वजह यही थी कि मैं बार बार फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो मैंने इसलिए फ्यूचर सिंबल पहले पढ़ाया। शी विल डाई, ये भी प्रिडिक्शन है, व्हाट वी प्रिडिक्ट वी यूज फ्यूचर सिंबल। लेकिन अगर आपके सामने उसकी ब्लड रिपोर्ट आ जाए, सिटी स्कैन आ जाए, सारी रिपोर्ट सामने आ जाए, ले भाई ये तो मरने वाली है, भाई बिरयानी का ऑर्डर दो, शी इज गोइंग टू डाई, शी इज गोइंग टू डाई। माई ब्रदर विल किल मी, प्रिडिक्शन, माई ब्रदर हैज सीन मी स्मोकिंग, मेरे भाई ने मुझे सिगरेट पीते हुए देख लिया, अब तो वो जो मार डालेगा, ही इज गोइंग टू किल मी। उसे रोको, गिर जाएगा वो, स्टॉप हिम, ही विल फॉल। वो देखो, वो देखो, मैं कह रहा था ना गिरने वाले, जाके जल्दी जाके पकड़ो उसको, लुक ही इज गोइंग टू फॉल। बोलते ना इस तरह के जुमले हम लोग, वो देखो गिरने वाला है, उसको जाओ जाके पकड़ो, गिर जाएगा वो, ही इज गोइंग टू फॉल। बैग पे बच्चा बैठा हुआ है, वो देखो गिरने वाला है, गिरने वाले, उसको पकड़ते पकड़, ही इज गोइंग टू फॉल। तो वो गिरने वाला है, ये क्या कर रहे हैं आप? ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं आप, हालात को देखते हुए। पूरे देख बादल चेक कर भाई, कितने काले काले बादल आ रहे हैं, इट्स क्लाउडी, बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, इट इज गोइंग टू रेन हैवीली, इट इज गोइंग टू रेन हैवीली। अभी आपने देखा 4:54 हो रहे हैं, आपने कहा सरसी क्लास खत्म करने वाले हैं। देखो उर्दू मैच हो गई, बारिश होने वाली है, क्लास खत्म करने वाले हैं। अब क्लास खत्म करने वाले बच्चा ये बोल देता है सरसी इज गोइंग टू फिनिश द क्लास, जुमला गलत। आप प्रिडिक्शन कभी इस पर नहीं दे सकते, आप कभी ये नहीं कह सकते बारिश होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन। आप हमेशा क्या बोलेंगे? देखिए दोनों जो सेंटेंसेस को फोकस कीजिएगा, मैं ये नहीं कह सकता इट इज अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है, मैं हमेशा यही कहूंगा इट इज गोइंग टू रेन, क्योंकि प्रिडिक्शन है ना, हो सकता है मेरी प्रिडिक्शन गलत हो जाए, बारिश मेरे हाथ में थोड़ी नहीं है। लेकिन सरहसीब क्लास खत्म करने वाले 4:55 हो गए, 5 बजे खत्म कर देंगे, मिस मरियम इंतजार करेंगी मैडम। ही इज अबाउट टू फिनिश हिज क्लास, आई एम अबाउट टू फिनिश योर क्लास। आपकी सुबह 7 बजकर, एग्जैक्टली इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। आप 5 मिनट है, आपकी दोस्त ने मैसेज कर दिया नीचे आ जाओ, हम पहुंच रहे हैं, उसी वक्त फोन आ गया आपका, आपने कहा यार आई एम अबाउट टू लीव फॉर ऑफिस, यानी कि 2 3 4 5 मिनट में आपकी फ्रेंड नीचे आ जाएगी गाड़ी में, तो अब आप क्या कहेंगी? आई एम अबाउट टू लीव फॉर ऑफिस, आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं बस ऑफिस के लिए निकलने वाली हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। वो काम जो आप 3 से 4 से 5 मिनट में करने वाले हैं, उसके लिए अबाउट टू का इस्तेमाल होता है, जब ये आगे लिखा हुआ है इमीडिएट फ्यूचर। लेकिन अगर आपको लगता है कि बारिश होने वाली है, तो ये प्रेडिक्शन है, आप ये नहीं कह सकती इट इज अबाउट टू रेन, आपके हाथ में थोड़ी नहीं है 5 मिनट में शुरू ही हो जाएगी। आप हमेशा क्या बोलेंगे? इट इज गोइंग टू रेन। ठीक है सनम? जैसे मुझे मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने टॉपिक पढ़ाया था ना, वो मुझे थोड़ा मिस हो गया था। जैसे उसमें था इट है, इट हम जानदार चीज के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर ये सेंटेंस है दिस इज अलीज शर्ट, इट इज हिज आएगा, या दिस इट इज हिज आएगा ना, दिस तो नहीं आएगा ना, या बेजान के लिए दिस इज अलीज शर्ट, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। आप शर्ट की बात कर रहे हैं, आप इट इस्तेमाल करेंगे जी, तो फिर इट यूज कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते।
जी वो टॉपिक था तो उसमें हम ग्रामर कर रहे थे सारे, तो उसमें ये था कि नहीं दिस आएगा, तो मेरा था कि इट आएगा ना। दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, वो भी सही है, दिस भी एज अ प्रोनाउन यूज हो जाता है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव वो भी इस्तेमाल हो जाएगा, इसमें देयर इज नो पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। जिससे ये यूं था, मतलब वो कह रहे थे कि बेजान चीज के लिए सर ने दिस बताया था और जानदार के लिए इट बताया था। बेजान और जानदार दोनों के लिए आप इट इस्तेमाल कर सकती है, उसको उनको बता जी दीजिएगा। कौन जी है जी भाई? ठीक, थैंक कौन है हु इज इट? ये तो जानदार है, दरवाजे में दस्तक हुई, यू। आपने सवाल पूछा कौन है जी भाई, जी हु इज इट? अरे मैं हूँ पप्पू, इट्स मी, इट इज मी, इट इज मी, इट इज मी पप्पू, योर बेस्ट फ्रेंड। सही है, ठीक तो है सर, ठीक है जानदार के लिए सर। और इस्तेमाल सर कर ये लिया। जी, और सर ये जो मतलब हम टेंसेस में एक दिन कोई मैम से पूछ रहा था, जैसे पैसिव वॉइस फॉर्म में हम हैज के साथ बीन भी लगा देते हैं ना सेंटेंस में, तो वो तो पैसिव वॉइस में बीन लगाएंगे, उसका मुझे थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो गया कि अगर हम तो पैसिव वॉइस में है, तब तो बीन आएगा, अदरवाइज उसमें परफेक्ट कंटिन्यूस में है तब तो बीन आता है, लेकिन परफेक्ट में बीन नहीं आता, अगर पैसिव वॉइस फॉर्म में हो तब आता है ना बीन। कहाँ से आज ये कौन सी गाड़ी कहाँ से टकराई, ये कहाँ से आके टकराई है ये गाड़ी? बीन की बातें भी आ गई, बहुत आगे की बातें चल रही है, बच्चे परेशान हो जाएंगे, बात सुन बच्चे थोड़ा ख्याल करें। अबाउट टू क्लियर हो गया बहन, अबाउट टू क्लियर हो गया, गोइंग टू और अबाउट टू में डिफरेंस क्लियर हो गया। वो बेटा एक बिल्कुल अलग बात है, वो आप बिल्कुल हाईवे पर चली गई, अभी तो हम गलियों में घूम रहे हैं, ठीक है ना। चले, अच्छा ये आखिरी बात है, फिर छुट्टी, 2 मिनट रह गए। आपने मॉडल वर्ब्स पढ़े थे, आपको जानकर खुशी होगी सिर्फ 3 मॉडल्स हैं जो आप प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अगर मैं कहूं शी इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग का मतलब होता है वो सो रही है, सुबह के 7:30 बजे वो सो रही। लेकिन अगर मैं इसको मॉडल्स में ले जाऊं, देखो भाई 7:30 बज रहे सुबह के, शी मस्ट बी स्लीपिंग, मतलब बताओ, वो लाजमन, वो जरूर सो रही होगी, वो जरूर लाजमन सच सो रही रही होगी। है। वो लाजमी। लाजमन सो रही होगी, वो लाजमन सो रही होगी। It is 7:30 a.m. She must be sleeping. She must be sleeping. आज जुम्मा है, टुडे इज फ्राइडे, शायद वो नमाज पढ़ रही है। बताइए कैसे बताएंगे, वो शायद नमाज पढ़ रही है। She might be offering prayer. She may be offering prayer, she might be offering prayer, वो लाजमन नमाज पढ़ रही होगी, she must be offering prayer। शी मस्ट बी। 3 मॉडल्स हैं, इनको याद रखें और आपकी कॉन्वर्सेशन में अब ये आना शुरू हो जाने चाहिए, ठीक है, बात समझ आ रही है? अब जैसे he is not responding at the moment, he is not responding at the moment, क्या मतलब? आगे he might be sleeping, he might be sleeping, क्या मतलब? वो भी मतलब जवाब हो नहीं दे सकता है रहा। वो सो रही है। हो सकता है वो सो सो रहा रहा हो, हो सकता है वो सो रहा हो, और या शायद गाड़ी चला रहा हो। ही मे बी मुमकिन ड्राइव, he may be driving, शायद वो ड्राइविंग कर। और दूसरा, और हो सकता है वो बाहर खेलने गया, हो सकता है वो बाहर खेल रहा हो, खेल रहा। he may be playing outside, it Excuse may me, be he may be playing outside, मुमकिन है वो बाहर खेल रहा हो, मुमकिन है वो बाहर खेल रहा हो। आ गई बात समझ? आसान है, देखो कोई टेंशन नहीं हुई मॉडल में, आपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को समझ लिया, आपने ज़ैमार की जगह मॉडल लगाकर आगे बी प्लस वर्ब आईएनजी लगा दिया है भाई, कोई टेंशन है इसमें? जी sir. सर, ये लास्ट वाला, It दिस लास्ट might वन। be raining outside at the moment, it might be raining outside at the moment, शायद ही इस वक्त बाहर बारिश हो रही हो, it might तो be सर raining, मे बी और माइट बी बोथ हैव सेम मीनिंग, शायद। may 50%, might 30%, शायद शायद ही। Maybe. Any सर ये question? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के मॉडल्स भी यही, जस्ट ये मे, बस मस्ट, मे, माइट।
नहीं है बस उसके अलावा? कोई और नहीं है शुक्रिया। जो आपकी Excuse स्पोकन me, में sir. आएगा। बोले। सर ये काइंडली अपनी फाइल शेयर करते हैं, हमारे पास जो फाइल है वो 70 पेजेस वाली, ये 90 पेजेस जो आपने दरमियान में ऐड किए थे वो उसमें नहीं है, उस फाइल में सही, मैं भेज दूंगा। पहले शेयर किया। ठीक। जज़ाकल्लाह सर। ओ, अस्सलाम वालेकुम। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। आप अगर प्रेजेंट सिंपल की और प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आपको मैं एक असाइनमेंट और दे देता हूं, वहां से आप इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके पास नोट्स, जब आप टेंसेस में जाते हैं तो ये देखिएगा आपके पास एक वर्कबुक है, और इस वर्कबुक पे आप क्लिक करेंगे। वर्कबुक पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देखिए आप पहुंच जाएंगे। इसका यूनिट 1 और यूनिट 2 आप लोग कर चुके हैं, बी और हैव, ठीक है। फिर आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल किया होगा, प्रेजेंट सिंपल की भी इसके अंदर एक्सरसाइज थी, हैव टू भी था। अब आपके सामने आ जाएगा ये हैव टू एस टू के बाद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। देखिए आगे यूनिट 6 पेज नंबर 32, इसके अंदर बहुत सारी वोकैबुलरी भी ऐड हो जाएगी आपके पास, ठीक है। इन सेंटेंसेस को बनाने का मकसद और देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी वोकैबुलरी में इजाफा करना है। ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स की लिस्ट भी आ गई है, और सर की सदाएं लगाने से पहले सर की बात तो मुकम्मल हो गई। ये आपकी प्रैक्टिस शीट्स आ रही है, इसको प्रैक्टिस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस 6.3 है, नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। 6.3 जो है वो आपसे कहती है चूज प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेस। ये लाजमी कर ले 6.3, ताकि आपका प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपने ये 100 सेंटेंसेस कर लिए, आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में PhD मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।